دھمکی ملی تھی کہ مدرسے بند ہوں گے، لہٰذا طلباء جو ہے وہ گھر میں ہوں گے، اسکول بھی بند ہوں گے۔ تقریباً 8 بجے کے قریب بیگ لے کے اندر گھسا ہے، ابھی پرسن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا وہ کون شخص تھا، بیگ رکھ کے گیا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس 30,000 کے قریب مسجدیں ہیں اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں۔ جتنی سیکیورٹی دے سکتے ہیں اتنی دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن ایک بار پھر گھر میں داخل ہو کر ٹارگٹ کلنگ میں کامیاب ہو گیا۔ آج پشاور میں صبح سویرے ایک مسجد میں اس وقت بم رکھا گیا جب قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ اس دھماکے میں دور دراز سے آئے 8 طالب علم شہید ہو گئے جبکہ 100 سے زائد طالب علم زخمی ہیں۔ حکمرانوں کی جانب سے روایتی مذمتی بیانات سے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر حق حکمرانی ادا کر دیا گیا ہے۔ مذمتی بیانات سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے حکمران کہیں اور مصروف ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم نے اپنے ماتحت خفیہ اداروں کو اپنے ہی وزیروں مشیروں کی جاسوسی پر لگا رکھا ہے اور بچا کچا ٹائم اپوزیشن رہنماؤں کو فکس کرنے میں گزر جاتا ہے۔ جن اداروں کا کام اس جیسی ہولناک دہشت گردی کو ہونے سے روکنا ہے، وہ اپوزیشن کے جلسوں کو مینج کرنے میں لگا دیے گئے ہیں۔ حکمرانوں کی ترجیحات کا عالم یہ ہے کہ آج صبح سویرے پشاور کی مسجد میں ہونے والے اس ہولناک سانے کے باوجود کسی کے کان پر کوئی جو تک نہیں رینگی۔ آج بھی وزیر اعظم عمران خان اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھے یہ ڈسکس کرتے رہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس کیسے لانا ہے۔ وفاقی کابینہ آج بھی اپوزیشن کے سیاسی جلسوں میں کی گئی تقریروں پر سر جوڑے بیٹھی رہی۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کا اپنا یقین دیکھیے، اللہ کے گھر مسجد کو تو اللہ کے سپرد کر کے بیٹھے ہیں کہ وہی اللہ حفاظت فرمائے گا، مگر اپنے گھر اور دفاتر محض اللہ کے حوالے ہرگز نہیں کیے ہوئے۔ وہاں تو تہ در تہ فول پروف سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات ہیں۔ گورننس کے بعد اقربا پروری کا عالم دیکھیے جناب، کیبنٹ ڈویژن کے توشہ خانہ میں پڑے سرکاری تحائف پر بھی حق ملکیت صرف وفاقی ملازمین اور آرمڈ فورسز کو دیا گیا ہے۔ 2 کروڑ روپے کی گھڑی سمیت کئی بیش قیمت تحائف کی بولی میں حصہ لینے کی شرط وفاقی ملازم یا آرمڈ فورسز سے ہونا ہے۔ حکومت کے سرکاری فیصلے پر پاکستان کے سبھی غیر سرکاری عوام پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری تحائف پر ان کا حق کیوں نہیں جن کے ٹیکس کے پیسوں سے ان سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نکلتی ہیں۔ عوام پوچھنے پر حق بجانب ہے کہ جس گھڑی کی بولی 1.25 کروڑ روپے سے شروع ہونی ہے، اس قیمتی گھڑی کو غریب پاکستان کا سرکاری ملازم خریدنا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ ہزاروں اور لاکھوں میں تنخواہ لینے والے کروڑوں کی گھڑیاں آخر کن پیسوں سے خریدیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، ایک بڑے دکھی دل کے ساتھ آج میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہوں گی۔ میرے ساتھ آج پینلسٹ ہیں جی شوکت بسرا صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے جی بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے جی سٹنگ ایم این اے علی گوہر بلوچ صاحب، PMLN کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ دکھ اتنا ہے، تکلیف اتنی ہے، کرب اتنا ہے کہ جس دہشت گردی کی جنگ سے ہم نکل چکے تھے، اپوزیشن کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی۔ ہماری فوج نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، اور ایسا ہوا بھی، دہشت گردی کے واقعات نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن پھر ایک گھبراہٹ ہوئی آج صبح یہ واقعہ دیکھ کے کہ کیا ہم نے پھر ان بدبختوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا؟ کیسے ہو گیا یہ واقعہ؟ شوکت بسرا صاحب،
कोई तो है जिसकी जिम्मेदारी है, कोई तो है जिसके ऊपर मैं जिम्मेदारी डालूं, कोई तो है जो आप नामजद कर दें कि XYZ ये शख्स है जिसकी नाअहली, कोताही और इसकी वजह से ऐसे वाकयात दोबारा सर उठा रहे हैं। बिना स्टेट हुकूमत जिम्मेदार होती है अमन व अमान की सूरत हाल की, जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की, कतई दो राय नहीं है। जो जज्बात आपके हैं इस वक्त यही जज्बात पूरी कौम के हैं। पहले तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस दहशत गर्दी के वाक़े में लोग फौत हुए हैं उनको जन्नत में जगह दे, जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और उन दहशत गर्दों को, बल्कि वो मैं कहूँगा कि वो इंसान, उनको कहना वो हैवानों से भी बदतर हैं, अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे और उनको जहन्नम वासिल करे। देखें बात ये है बिनश, इसमें कतई दो राय नहीं है कि हमारा दुश्मन जो है वो छुपा हुआ है या सामने वाला है। वो पाकिस्तान के एक नक्शे के ऊपर नक्शे बना के बैठा हुआ है कि हमें पाकिस्तान को तोड़ना है, बलूचिस्तान फ़लाँ जगह का हिस्सा होगा, सिंध फ़लाँ जगह का हिस्सा होगा, उसमें CIA है, रा है, मुसाद है, कुछ लोग आपके सामने हैं, कुछ छुपे हुए हैं। उन सब को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज ने, हमारी कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जिस वजह से पाकिस्तान का अमन लौटा है। लेकिन अगर ये कहें कि दहशत गर्दी सिरे से ख़त्म हो गई तो ये गलत बात है। और ख़ास तौर पे वो लोग, वो शख्स, वो मैं कहता हूँ हैवान जो हैं, जो पहले बम बांध कर अपने साथ सामने आते हैं, ज़ाहिर उन्हें पता होता है पहले हमने मरना है, बाद में किसी और ने जाना है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें वो जो स्पेस है उनको नहीं देनी, मुसलसल हमें उनको वॉच करना है। और जाहिर है दिनेश जब मैं फिर यही कह रही हूँ कि सर किसका ये सिक्योरिटी लैप्स है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ दिनेश, हमारी जो माओ ने बच्चे पैदा किए हैं, हमें फ़ख्र है उन शहीदों पे जिन्होंने इस दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ लड़ते हुए शहादत को चूमा है। आए रोज़ आपके बॉर्डर्स पे, आए रोज़ जहाँ भी धमाका होता है, हमारे वो खा अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, खा हमारे पुलिस के लोग हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हैं, खा आम सिविलियन हैं, वो शहादतें दे रहे हैं। हमारी एजेंसीज को शौकत बसरा साहब हैव सम गट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैव सम गट्स टू एक्सेप्ट दिस कि हमारी एजेंसीज को, मैं IB की बात कर लेती हूँ, खुल के बात कर लेती हूँ, हमारी जो IB है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं, डेफिनेटली उनके पास ये थ्रेट रिपोर्ट्स आती हैं, वो इस सारे काम को देखते हैं। लेकिन आपकी हुकूमत ने, आपके वजीर आज़म ने, मेरे वजीर आज़म ने उनको कहाँ बिजी रखा है? आप बताएंगे कि मैं बताऊं? मेरे ख्याल से मैं बता देती हूँ, जरा सुनवाइए जी। इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो ब्यूरोज हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, दिखाइए जी। साल हो गए हैं उस्मान के ऊपर, कोई कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। IB से मैं एक एक चीज़ को चेक करवाता हूँ, एक एक जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा मैं चेक करता हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है, मुझे तो समझ नहीं आई कि नैब ने ये, आप अगर इसमें से कुछ भी निकला है मैं मान जाऊँ, ये कोई चीज़ है कि जनाब आप वो एक्साइज का काम है वो देना, वो यानी उसके ऊपर उसको नैब पे बुला लिया। मेरे ख्याल में मैं बड़ा इस पे करता हूँ कि बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। जी बसरा साहब, जब आप अपने इदारों को उनका ओरिजिनल काम छोड़ करके इस काम में बिजी रखेंगे, बिकॉज गलती उनकी नहीं, गलती बॉस की है कि बॉस ने उनको एक इररेलेवेंट काम दे दिया, तो सर फिर तो सिक्योरिटी लैप्स होएगा ना। दिनेश मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ बड़ी माजरत के साथ। गुजारिश ये है कि जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, अपने IB का नाम लिया, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट जनरेट की, और मुझे अभी तक याद है अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया कि ये हमें डराने के लिए है, ये हमें धमकाने के लिए है, ये जलसे रोकने के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें जो जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनका हर तरह का काम होता है। आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में सिर्फ IB है? नो, IB एक वो इदारा है जो डायरेक्टली जो डील करता है टेररिज्म को, वो आपका इदारा है। ISI के अंडर जो आते हैं, जो MI के अंडर आते हैं, जो आपके ये जो अभी हमने टेररिज्म के एक्ट किताबें जो एजेंसीज बनाई थी, एक पूरा वो डील करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, छोड़ देंगे एजेंसियां हैं, मैं आप सब, चूंकि कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख के करीब हमारे ही लोग, हमारे ही बहन भाई इस दुनिया से जा चुके हैं। सो ये कहना जो ऑपोजिशन का नैरेटिव है वो ये है कि आप लोगों ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हो, विद डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ द आर्मी, आप लोगों ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। फिर इस तरह के वाक़यात पे दर पे क्यों हो रहे हैं? एकदम से हमने देखा कि वाक़या हुआ और 1 नहीं 2 नहीं 8 नन्ही जाने, विच मीन्स 8 फैमिलीज।
اس آج کے حوالے سے بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے تو جو بچے اس المناک سانحہ میں شہید ہوئے اور جن گھروں کے اوپر یہ قیامت گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان بچوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان شہداء کو. اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ جو یہ واقعات ہیں دہشت گردی کے، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ کی ذات رحم فرمائے اور ہمارے ان چھپے ہوئے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، پورے پاکستان کو، پوری ملت اسلامیہ کو. دیکھیں جو واقعات ہو رہے ہیں، میں اگر بات کروں گا، پہلے آپ نے کافی تجزیہ کیا ہے. ظاہر ہے اگر اپنا جتنی بھی ہماری مطلب ایجنسیز ہیں، جو متعلقہ کنسرن ادارے ہیں، اگر وہ اپنے کام پر دھیان دیں اور قانون اور آئین کے مطابق چلیں اور کسی ایک فرد واحد کے اشارے کے اوپر، جو کہ سو کالڈ پرائم منسٹر ہیں، ان کے اوپر مطلب ہے ایسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں جو غیر قانونی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان واقعات میں کافی حد تک روک تھام ہو سکتی ہے. بالکل آپ نے ضرب عضب کا ذکر کیا ہے. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ضرب عضب والا سلسلہ رد الفساد، اور اس کے بعد آپ نے کراچی کے حالات دیکھا، یہ 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے سائے کس طرح سے منڈار رہے تھے، روز کتنے واقعات ہوتے تھے. اگر آپ پنجاب میں لیں تو لاہور میں کتنے المناک واقعات ہو چکے ہیں، جس میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہماری ایجنسیز کے علاوہ سول سوسائٹی کے لوگ، ہماری مائیں بہنیں، بچے، جوان، بزرگ، بوڑھے، مطلب بہت لوگ شہید ہو چکے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ آج ہمیں فکر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر سے واپس کب لانا ہے اور کس طرح سے لانا ہے. آج ہمیں فکر یہ ہے کہ کہیں شہباز شریف کی ضمانت نہ ہو جائے، کہیں حمدہ شہباز کی ضمانت نہ ہو جائے. آج ہمیں فکر یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کے اور اپوزیشن کے قائدین ہیں وہ باہر جو پھر رہے ہیں ان کو جیلوں کے اندر کیسے پرائیورٹیز، حکومت کی پرائیورٹیز. اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ پرائیورٹیز ٹھیک نہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. اس وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، شوکت برسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، علی گوہر بلوچ صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب ایک ماؤتھ پیس ہیں گورنمنٹ کے، ویسے تو خیر وہ بہت سارے لوگ کے ماؤتھ پیس ہیں. شیخ رشید صاحب، انہوں نے کچھ دن پہلے کوئی ایک وشیش ٹپنی، کوئی پریڈکشن کی تھی کہ بھئی اگر اسی طرح اپوزیشن کے جلسے ہوتے رہے تو دہشت گردی کا خدشہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ وہ سن لیجئے پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں. سنوائیے جی شیخ رشید صاحب اور ان کی پریڈکشن. میں کوئٹہ اور پشاور کے جلسے کے لیے دعا گو ہوں کہ خیریت سے ہوں، لیکن یہ بہت بڑا سانحہ کہیں رونما ہو سکتا ہے اور پاکستان کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے عملی طور پر لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، اور آپ ابھی تک پی ڈی ایم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ابھی تک جو ہے اپنے جلسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لک ایٹ دا کنڈیشن. شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے وہ حکومت کا بوکھلا جانا، اور بڑی دیر سے ہم تو پہلا جب جلسہ گوجرانوالہ میں ہوا ہے اس کے بعد سے حکومت اور حکومتی وزراء کی بوکھلاہٹ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کے اوپر میرے خیال سے سیاست نہ کی جانی چاہیے اور کرنے والے کی مذمت ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بینش کوئی آسان نہیں تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں، انہوں نے اپنی جان دی، ریاستی بیانیہ بدلا. وہ ان لوگوں کو جنہیں کہیں نہ کہیں ریاست سپورٹ کرتی رہی، ریاست کو اس کے خلاف لڑنے کا اعلان کرنا پڑا. یہ محترمہ کے موقف اور ان کی شہادت کا نتیجہ تھا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے اس وقت بھی عمران خان کا بیانیہ کیا تھا، وہ آج بھی آپ جانتی ہیں، اخبارات نکالیں ان کے بیانات. عمران خان شروع سے انتہا پسندی کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، طالبان کے ساتھ بھی تعلق رہے ہیں، دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. لیکن کوشش یہ ہوئی ہماری حکومت کے 5 سال اور میاں صاحب کی حکومت نے بھی اسے آگے بڑھایا. نیشنل ایکشن پلان ہوا، فوج نے رد الفساد اور ضرب عضب کے ذریعے
बड़ी बेश बहा कामयाबियां हासिल की। वो दहशत गर्द जो इस्लाम आबाद पहाड़ के पीछे थे और आ रहा था किसी वक्त कब्ज़ा होगा, ख़त्म हुआ और पाकिस्तान की अथॉरिटी रियासत की, स्टेट की कायम हुई। लेकिन जब से ये 2 साल से हुकूमत आई है, 2.5 साल से, इसका तर्ज अमल क्या है? नेशनल एक्शन प्लान पसे पुश्त है। उसके बाद दहशत गर्दों को फरार करवाया जा रहा है बाकायदा। शेख रशीद के बयान से मुझे किसी किस्म की कोई अचंभे की बात मेरे लिए नहीं है। जो हुकूमत APS के कातिल, आपने उस लिहाज से प्लानिंग भी नहीं की। अगर अचंभे की बात नहीं है ये बयान, अगर आपको पता है कि ये सब है और जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, सो आप अपने जल्द से अपने कारकुनान की लाइफ को भी जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। अचंभे की बात इसलिए नहीं, खुदा न खास्ता, अब आपको तो समझ आ गई ये दहशत गर्दी है या फरमाइशी दहशत गर्दी है, इसे समझे। APS के स्कूल के बच्चों के जो कातिल है एहसानुल्लाह एहसान, उसे किस तरह फरार करवाया गया? KPK की जेलें कैसे खुली और कैसे कातिल और ये खुदकुश हमलावर भागे? ये मेरी बात सुन लें। नहीं सर, मैं आप ही के साथ हूँ। दहशतगर्दी होती है, ये फरमाइशी दहशतगर्दी क्या है? फरमाइशी आपने एकदम दहशतगर्दी के लिए मुझे अचंभे में डाल दिया, इसको पहले एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेशनल TV जिसका आपने टेलीविजन पे भी सुनाया है, इस शख्स की तकरीर एक कंटेनर के ऊपर थी, जला दो, गिरा दो, ख़त्म कर दो, फूंक दो। याद है कि नहीं याद है? उस वक्त ये अपोजिशन में था, आज ये हुकूमत में, और हुकूमत में कह रहा है कि दहशतगर्द आ चुके हैं, हमला शुरू। ये शेख रशीद को बता के आए हैं। तो ये तो आपसे ज़्यादा बाखबर निकले ना। इन्होंने किसी एजेंसी को नहीं पता चला? हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हो गई नाकाम, और शेख रशीद एक शख्स जो है वो इतना कामयाब है कि उसने बता दिया कि कोई दहशतगर्द आ रहे हैं। मैंने आपको कड़ियाँ जोड़ के दे दी कि एहसानुल्लाह एहसान भागता है, KPK की जेलें खुलती हैं, और ये जो था उसामा बिन लादेन, उसे वज़ीर आज़म शहीद कहता है। उसके बाद फ़ौज की, आखिरी बात, फ़ौज की और हुकूमतों की और सियासतदानों की सारी मेहनत जो थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जिस तरह मईशत तबाह की, जिस तरह महंगाई का सुनामी आया, जिस तरह गुर्बत तारीखी हो गई, उस तरह दहशतगर्दी के वापस लेके आ रहे हैं। ये 2.5 सालों के अंदर ये मुल्क डबोने के लिए आए हैं, और इनके ये इत्तेहादी हैं, इनके ये आज के इत्तेहादी। इमरान खान को क्या तालिबान ने अपना वकील नहीं बनाया था? तो जो वकील बनाया था आज उसकी सपोर्ट में आ गए। बसरा साहब, यहाँ से शुरू करें कि शेख रशीद साहब आप ही के साथ बैठे हैं, आप ही की बेंचेस में बैठे हैं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, इतने बाखबर है, इतने वेल इन्फॉर्म्ड है। सबसे पहले तो आप इनसे इंटेरोगेशन शुरू करें कि इनको कैसे पता चल गया कि इस किस्म का वेव आने वाला है? देखिए बिनेश, शेख रशीद साहब ने वही बात की जो एजेंसीज ने कही, जो बाकायदा एजेंसीज ने रिपोर्ट किया, किसी ढुकी छुपी नहीं है, वही बात शेख साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात बिनेश, मैं अफवाज पाकिस्तान, अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस और अपने सिविलियंस को नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर पूरी कौम की जानब से सलाम पेश करता हूँ उनकी कुर्बानियों को। जिस तरह मर्दाना वार दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, ये आसान काम नहीं था। यहाँ तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आज टूटा कल टूटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लखते जिगरों ने, हमारे नौजवानों ने अपनी शहादतें देकर पाकिस्तान को बचाया है। फिर मैं एक अर्ज़ करूँ, दूसरी बात मैं नहीं कहना चाह रहा था, अब एक सियासी एंगल है इस बात का। जब आप अपने रियासती इदारों को, जब आज अफवाज पाकिस्तान को डायरेक्ट इनाम लेकर टारगेट करेंगे तो बिनिश क्या होगा? शादियाने एक बजाए जा रहे थे, या कराची के अंदर जो कुछ हुआ, क्या रिपोर्टिंग हुई इंडिया के अंदर, फौज और पुलिस आमने सामने आ गए। आप इंडिया का नैरेटिव बाय कर रहे हैं, मुझे बात करने दीजिए। तो फिर वो नैरेटिव भी बाय करें जो उन्होंने आपके चेयरमैन के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा। बात मुकम्मल करूं फिर आप कह दीजिएगा जी। वहां पर क्या हुआ? जिस दिन APC में तकरीर दिखाई गई, मियां नवाज शरीफ की उन सब की गुफ्तगू दिखाई गई, क्या हुआ? फौज पर हमला कर दिया अपोजिशन ने। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो काम मैं फिर बार बार कह रहा हूं, खुदारा सियासत, अगर आप पाकिस्तान में हुकूमत में हो, आप वजीर आजम हो, तो सब अच्छा है। रावी चैन लिखता है, फौज भी अच्छी है, अदालत भी अच्छी है। बसद एहतराम मैं आपके साथ इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट तब करूं कि जब मुझे पता हो कि जी नवाज शरीफ ने तकरीरें क्या की हैं। ना मैंने वो तकरीर देखी, ना कहीं सुनी, ना कहीं चली। आप लोग आके बता दें कैसे सुन ली? मैंने नहीं सुनी सर। कैसे सुन लेते? अच्छा, मुझे अगर आप उसके ऊपर बात करेंगे, मुझे वो तकरीरें दिखाना पड़ेंगी।
आपको और आप सब मुझे- लोगों को वो साउंड बाइट्स दिखाने पड़ेंगे एक कि भाई मिनट। ये वो कह रहे हैं, फिर हम इस पे सवाल रुक करेंगे। जाइए, लेकिन यहाँ रुक सर जाइए। जो मेरे सामने चीज है ना, यार नहीं, रुक जाइए, बात सर, मैं करने उस पे देना, debate बात करूंगी नहीं। मुझे एक बात मुकम्मल करने हम दें। नवाज शरीफ साहब की तकरीरें नहीं दिखा रहे, मुझे दिनेश- पता ही नहीं है वो बात क्या कर रहे ये हैं। सिर्फ हमारे सर, मैं क्या जलसे तो तकरीर देख रहे हैं, करूं, हुकूमत तो मैं कर नहीं बात रही। मुकम्मल मैं आपको सिर्फ कैसे हमारे allow जलसे करूं देख कि रहे आप आपसे बात दोनों करें? मुझे पढ़ गए हैं, तीनों पढ़ गए हैं, मुझे मेरा मौकफ नहीं देने अब दें। आप पढ़ जाएं। मैं आपको सिर्फ ये यार- कहना, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह बसरा रहा हूं। साहब ये पढ़ गए क्या? अच्छा अलग मैं से होता है। सर नहीं, हमलावर दूर हो गए ना, आप बिल्कुल इस नेशनल टीवी पर तरह, हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह 11 जमातें, चले, अब आप पढ़ जाएं, इस अब आप तरह पढ़ जाएं, पढ़ जाएं आप, जिस तरह opposition 11 को। जमातें, भानुमती का कुनबा हमारी स्टेट पे हमलावर हो चुका है, आप भी तीनों मेरे पे हमलावर हो गए। ये मुझे मेरे बात तो करने सामने दें। बसरा साहब, आप मुझे- ना घर से जवाब मुझे- सोच कर आते हैं अच्छा कि मुझे मैं बात ये तो जवाब करने दूं। दें, सर, अल्लाह मैं का आपसे वास्ता है, मुझे सवाल बात कर तो- लूं? मुझे गुजारिश सर आप ये देख लें, ये तोशा खाना अब रेफरेंस, तोशा खाना की बात लिखना, तोशा खाना रेफरेंस, कहाँ तोशा खाना रेफरेंस जो हमें बताया जाता है कि कितनी बड़ी करप्शन जो है वो वैसे- नैब ने पकड़ ली है इनकी गाड़ियों के हवाले से। ये जी अच्छा, एक मेरा ऑक्शन ख्याल- हो रहा है तोशा खाना के गिफ्ट्स आर्टिकल का। ये ऑक्शन नंबर, ये मैं इनको पकड़ा देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स है ना, उन तोशा खाना के जो तहाइफ है ना, उनकी बोली में शिरकत कर सकते हैं और वो खरीद सकते हैं। अच्छा वैसे मेरा मुझे- सिंपल ये सवाल है सर, ये जो मेरे सामने चीज है ना, नवाज शरीफ और उसकी तकरीर को भूल जाइए सर। नहीं भूल सकता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि व्हाट ही नहीं सेड, भूल मुझे पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं सर। नहीं भूल सकता। मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आपने मैं नहीं भूल डिस्क्रिमिनेशन, सकता। सर मेरी इसको फौज देखिए, कुर्बानियां दे रही है, मेरी बच्चे शहादतें दे रहे हैं, हमारी पुलिस शहादतें दे रही है, मैं नहीं भूल सकता। लेकिन बसरा किस साहब, तरह भूल फौज जाऊं? सबकी है, फौज किस तरह की भूल जाऊं? ठेकेदारी ना अच्छा लें मुझे आप। बात मुकम्मल करने नहीं, दें। बसरा अब साहब, सब ये बात गलत बात है। कीजिएगा। इदारों लेकिन के पीछे ना अगर छुपे आप ना। मेरी टर्न पे बात प्लीज। करेंगे तो मैं प्लीज, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं मैं वैसे कह रहा हूं, मेरी फौज को गुजारिश ये छोड़ो है, बीच में। मेरी गुजारिश ये है, आप मुझे बताइए जो बात कि आप तमाम इस्लामी ममालिक को उठाकर देख लीजिए और ये दिल पर हाथ रख के आप भी बताइएगा, शाम कैसे तबाह हुआ, आपका मिस्र कैसे तबाह हुआ, आपका इराक कैसे तबाह हुआ, लीबिया कैसे, मैं आ रहा हूँ, मेरा इस तरह पाकिस्तान तबाह तबाह हो हुआ, गया है। इस तरह तबाह हुआ, उनके सबसे पहले स्टैंडर्ड से आ जाता सर, हूं। इस डबल स्टैंडर्ड से मेरा पाकिस्तान चल, अब तबाह हो इस रहा पे है। आ जाता जिन हूं। जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं ना, वो आमरीत से अब तबाह इस हो पे आ रहा है। इसका जाता जवाब दे दे हूँ, सर। अब इस पे आ जाता हूँ। आमरीत तो है ना, यहाँ पे अगर एक जमात का सर उन हुक्मरानी होगी ममालिक तो में ना आमरीत तो है। अवाम को वोट देने का हक नहीं था, इसलिए वो जो ममालिक है ना वो तबाह हुए। यहाँ भी सूरत वैसी है, अब इसको जरा चेंज कर लें। यहाँ पे सिविल आमर मौजूद है, वहाँ पे वर्दी वाला आमर बिल्कुल, मौजूद है, यहाँ पे छोड़ सिविल देते हैं। आमर मौजूद अच्छा है। अब बात करते हैं, बिनेश गुजारिश ये है, ये जो अपने तोशा खाना, अच्छा मैं सोच रहा था कि आज आप अप्रिशिएट करेंगी, यहाँ पे तो तोशा खाना में से चीजें चुरा कर घरों में ले जाई गई, उनके ऊपर रेफरेंस दायर हुए। यहाँ पर एक वजीर आजम क्या कर रहा है, वजीर आजम ने तोशा खाना से जो चीजें निकाली उनको पब्लिक कर दिया, उनको कहा आप इनको ऑक्शन लेकर खरीदे और कौन खरीदे? अच्छा सुन तो ले, पूरी बात करें। कोई भी खरीदे, कौन खरीदे सर? कोई भी खरीदे नहीं, नो, सिर्फ सरकारी मुलाजिम और आर्म्ड फोर्सेस, आम आवाम नहीं खरीद सकती। मुझे जवाब देने दीजिएगा। अच्छा ये जो आप पढ़ रही हैं, मैंने वैसे मेरी नजर से नहीं ये ले देखा। सर, मैं सुन तो ले सर ये ले, मैं पढ़ अभी लेता हूं, पढ़े, मैं पढ़ लेता हूँ, आप अभी पढ़ ले, मैं अभी अली पढ़ता गौहर हूँ, साहब मुझे से पढ़ने point भी ले लेती हूँ। दीजिएगा, पढ़ने भी दीजिएगा। एक जी, तो एक जी बार जी ये है। बारी आप दे पढ़ ले, सबसे पहले आप तो पढ़ ले। मैं सबसे सर, पहले तुसी तो पढ़ मैं लो, सर, अपने पढ़ लो। प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट करता हूँ। ये वो सर, प्राइम आप कर रहे हैं मिनिस्टर, सुनो मैं appreciate? क्यों अप्रिशिएट करता हूँ वो सुन ले, इस बात पे भी आ जाता हूँ मैं। आपका आपका ये point valid है, मैं इस पे आता हूँ। कि 2.25 करोड़ रुपए की घड़ी जो आपका है पॉइंट वैलिड है, मैं वो इस एक बात पे आता सरकारी हूँ। मुलाजिम सुन को तो ले, बेच रहे हैं। ये सुन तो हमारे ले। प्राइम मिनिस्टर का विजन है, सुन तो ये ले। आपके चेयरमैन क्या पाकिस्तान वो तहरीक इंसाफ सरकारी का विजन है, मुलाजिम हमारे खरीदेगा प्राइम मिनिस्टर तो का प्राइम विजन है मिनिस्टर जेब में कि डालेगा? 2.25 करोड़ रुपए की दिनेश- घड़ी एक सरकारी मुलाजिम दिनेश, खरीदे। इसका मतलब सर है- हाईएस्ट लेवल पे भी एक दिनेश, अगर सरकारी आप मेरे मुलाजिम साथ- उसकी क्या सैलरी अगर है, मुझे मौका वो आप 2.25 नहीं करोड़ देंगी, ये रुपए तो की बिल्कुल- घड़ी कैसे खरीद सकता है? दिनेश आप मुझे मौका दिनेश नहीं देंगे, ये तो का दोनों काफी नहीं टाइम देंगे। हो गया, अब हमारा आप भी मुझे टाइम बात है। बताएं, 2.25 वही करोड़ बातें रुपया हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ने इनके प्राइम मिनिस्टर को जेब में डाल लेना है? क्या वो मर्सिडीज गाड़ियां घर ले जानी है? क्या घड़ियां प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को अगर ये नोटिफिकेशन हुआ है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, ये सिर्फ वहां तक नहीं रहना चाहिए था। मैं आपकी देखिए मुझे बात मुकम्मल कर ये तो सर वक्त बताएगा मुझे कि बात तो शफाफ मुकम्मल- बोली हुई या फिर अपनों पर नवाजा जाएगा। लेकिन एक चीज हाँ। सर, एक चीज मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और आज जरूर बोल दूं, ये जी, नोटिफिकेशन प्लीज, देख के कि प्लीज, जो भी सरकारी मुलाजिम आर्म ऑफिसर ये ऑक्शन का हिस्सा बनेगा और इन चीजों से खरीदेगा, उसके खिलाफ एक नैब का रेफरेंस तो बनता है बहुत कि ये अच्छी बात है। पैसे कहां से आए, बहुत 2.25 अच्छी बात करोड़ है। रुपए की घड़ी एक सरकारी मुलाजिम कैसे खरीद दिनेश, सकता मैं है? अली आपकी गौहर साहब बात से का मुझे बात appreciate करनी है एक ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक लेना है। आप प्लीज नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए सर तसल्ली से, ताकि आप कुछ रीजनेबल, सेंसिबल, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सके। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक इन अ बिट।
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन। अली गौहर साहब, आपके कमेंट का इंतजार है। इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी डेवलपमेंट्स पे डेवलपमेंट्स हुई जा रही हैं और सारी की सारी अच्छी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन आपका वही एक नुक्ते का पॉइंट है कि भाई हम तो पीडीएम के साथ जलसे कर रहे हैं और हमारे जलसों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। देखें, गुजारिश ये है बिनिश के अभी आपने काफ़ी टाइम जो है वो बसरा साहब को दिया और आपने भी काफ़ी टाइम लिया। ज़ाहिर है आप एंकर हैं, आपका दिल करे आप जितना मर्जी टाइम और बाकी गेस्ट को मुंह पर पट्टी लगा के आप लोग बिठा देते हैं। तो मेरा ये एहतजाज आप नोट करें, सबसे पहले आपके साथ है। अब मैं आता हूँ आपके जवाब की तरफ। आप टाइम देख लें, अभी 1 मिनट बात नहीं होगी, आप काट देंगी और कहीं और तरफ ले जाएंगी। आप बसरा साहब से खुश कर रही थी कि वो 2 महीने बाद आपके टॉक शो में 3 मिनट बात कीजिए। देखिए मैं और रहती कहती कसर, चूंकि बसरा साहब में बसरा साहब में खुद सब्र नहीं है। इनके पूरे टॉक शो में मैंने 1 सेकंड के लिए भी इनको इंटरप्ट नहीं किया। अब जब मैं बातें करूंगा तो ये जरूर टांग अड़ाएंगे। आप देख लीजिए, पढ़ने वाली बात कर रहे थे, मुझे इन पे अफसोस नहीं है। इनकी ट्रेनिंग जो है आजकल इमरान खान न्याजी कर रहा है, तो वो इसी किस्म के बाजे देखें ना, आप बोल रहे हैं, अब इनसे हजम नहीं हो रही। गुजारिश ये है कि मुल्क में कौन सा कानून और कौन सा आप अभी एक वो पेपर पर हवाले देनी थी और मैं आपके टीवी पर एक टिकर नीचे चल रहा है जिसको मैं देख रहा था कि 120 अदालतें कायम हो गई हैं एहतसाब की। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ उन 120 अदालतों में से बसरा साहब प्रोग्राम के बाद ही बता दें मुझे फ़ोन करके कि आसिम बाजवे का एहतसाब करने वाली अदालत का नंबर कौन सा होगा, अदालत नंबर 5, अदालत नंबर 6। जो BRT पेशावर पे स्टे है, इमरान न्याजी साहब वो कब ख़त्म करवाएंगे और उसको कौन सी एहतसाब अदालत नंबर में चलाएंगे। नंबर 3, मैं ये पूछूंगा कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, क्या वो भी इन 120 जो एहतसाब अदालतें इन्हीं में ट्रायल होगा। और इमरान न्याजी साहब कंटेनर पे खड़े होकर जो फरमाया करते थे कि सबसे पहले हम जो है वो ऊपर से शुरू होना चाहिए, तो क्या अपनी बहन से एहतसाब शुरू करेंगे? क्या वो जहांगीर तरीन से एहतसाब शुरू करेंगे? क्या वो खुसरू बख्तियार से एहतसाब शुरू करेंगे? आप मुझे बताएं कि सुनामी ट्रीज पर एहतसाब कब होगा? हम चोर हैं, डाकू हैं, हम डाकुओं ने मोटरवेज बना दिए, हमने जो लोड शेडिंग थी वो ख़त्म कर दी। बसरा साहब आप बताएं और मुझे बताएं कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में कितने मुरब्बे और कितने DHS में प्लाट फौजियों को और फौजी अफसरों को अलॉट किए गए। जो किसी जुडिशली के बंदे को, जो किसी ब्यूरोक्रेट को, जो किसी सियासतदान को 2 मरले या किसी साफी को अलॉट हो जाएं तो उसको गाली तस्वर किया जाता है। आज इस पाकिस्तान में कभी कभी तो मुझे एहसास होता है कि शायद इधर अब इतने मुरब्बे हम फौज में बांट चुके हैं कि हमारे पास फौज से मुराद वो ऑफिसर है। आप शोहदा के वर्सा को दें, खुदा की कसम हमारी जान भी हाजिर है उनके लिए। आप उन आइन और कानून पर अमल करने वाले फौजियों को मुराद दें जो पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ रहे हैं। आप लोग तो मसरूफ हैं। बाजवा साहब कभी पपेट्स बिठाते हैं अपनी जगह पर हुकूमत चलाने के लिए, ये नहीं फिर उन्हीं के जरिए जो है वो उन्हीं के जरिए एक्सटेंशन लेते हैं। एक मिनट सर, उन्हीं के जरिए। मुझे इंटरप्ट न करें प्लीज, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। फौज के खिलाफ बात करेंगे सर तो मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउ नहीं करूंगी कि आप इतना मैं फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहा। सर नहीं, दिस इज नॉट अ जलसा। सर आपने 2 दफा नाम लिया। आई विल नॉट अलाउ दिस सर, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप इश्यूज पर बात करें, आप अपनी तनकीद का रुख हुकूमत पर करें, आप उस पर बात करें। 1 मिनट और बात कर लीजिए। मेरा सवाल सर नहीं कंप्लीट करें। मुझे बताएं ना हुकूमत के ऊपर क्या करें। हम ये किस कानून और आप मुझे बताएं। जब 35 हल्के, ये 35 बच्चे, ये 35 के यार आप हैं, मोदी का यार आप हैं जिन्होंने कश्मीर को है वो पाकिस्तान की तारीख में 72 साल तारीख में बसरा साहब पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान वो मकबूजा कश्मीर की हैसियत तलब वो जो थी खत्म कर दी गई और उसको इंडिया के किस मुंह से। आपको शर्म आनी चाहिए और पानी में डूब मरना चाहिए अगर कोई शर्म और गैरत हो। आप लोगों ने कश्मीर बेच दिया और हमें मोदी का यार। और आप मेंटल हॉस्पिटल में अली गौहर साहब किसका गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं? बस दिस इज अ टीवी शो। आई गॉट योर पॉइंट सर, जस्ट रिलैक्स, कूल। जलसों की बातें जलसों में, टीवी शो की बातें टीवी शो में।
आपका पॉइंट आ गया सर। अली गौर साहब आपका किशोर भाई मेंटल हॉस्पिटल में जाइए, मेंटल हॉस्पिटल बैरिस्टर साहब में आपको दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर प्लीज, आई हैव टू गिव टाइम टू बैरिस्टर साहब मैं प्लीज। समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी की टर्न है, अदरवाइज मुझे माइक ऑफ करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक आइन है और आइन के अंदर कौन से आइनी इदारे हैं आइन बता रहा है, वो है पार्लिमान, वो है अदलिया और वो है एग्जेक्टिव हुकूमत। और हमारी पाक फौज जो है वो हुकूमत का एग्जेक्टिव का एक हिस्सा है। अब उसे बार बार इदारे के तौर पे और सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी नाअहलियों को उसके पीछे छुप के और इदारों को आगे लेके आना, ये जो हुकूमत का काम है अब ये बंद होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता अगर पार्लिमान मजबूत नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी। पार्लिमान को जितना बेवकार और रबर स्टैंप इन्होंने 2.5 सालों के अंदर बनाया है वो आपके सामने है। इन्होंने जिस तरह से कानून साजी बिल्डोज की है, क्या फैटफ में फ़ायदा हुआ आपकी कानून साजी से? नहीं हुआ। इसका मतलब है ये आमराना और जो फस्ताई निज़ाम है ये चल नहीं सकता। अदलिया के ऊपर जो हुआ 3 दिन पहले फैसला आ गया और उस फैसले के बाद क्या इस सदर पाकिस्तान को रहना चाहिए जब अदलिया ने कह दिया कि उसने गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया है? इस कैबिनेट के रहने का कोई जवाब नहीं जिसने उस रेफरेंस को भेजा जो गैर आइनी और गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ कि मुल्क एक बंद गली के अंदर धकेल दिया गया है। मईशत हमारी बर्बाद है, महंगाई का सुनामी है, गुर्बत तारीखी है। उसके बाद आप देख लें खारजा महाज पे हम नाकाम हो चुके हैं। ये मोदी की यारी जो इन्होंने निभाई उसे कहते उसकी दुआएं करते करते कश्मीर को एक तरह से उसके हाथों में दे के प्लेट में रख दिया। मैं अब भी कहता हूँ मुझे बात करने दे, मुझे आखिरी बात तो करने दे। आखिरी बात मैं समझता हूँ, आखिरी बात बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।